Assalamu alaikum dear students. Today we will learn page number 5 of Oxford Progressive English for grade 6. Our first topic which is present on page number 5 is the simple present verb tense, which means the simple present tense. First of all, we will learn about the definition and rules of simple present tense. How you may define simple present tense. The simple present tense is used when you are describing conditions that existed for some time. Most of the verbs in the emails are in simple present tense. In our lesson, we have learned 4 emails and mostly emails were written in simple present tense. Simple present tense कब इस्तेमाल किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम ऐसी कंडीशंस को डिस्क्राइब करते हैं जो कि कुछ वक्त के लिए रहीं. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स क्या हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट रूल है दैट वी विल लर्न इज सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको लिखने से पहले आपको ये रूल्स पता होने चाहिए. अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. इन एवरी सेंटेंस द फर्स्ट थिंग दैट वी पुट इज सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम रखते हैं वर्ब, एंड आफ्टर वर्ब देयर इज एन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ वर्क, काम के करने वाले को कहते हैं सब्जेक्ट. वर्ब किसे कहते हैं? जो काम है, दैट इज वर्ब. और एंड में हम रखते हैं ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट को उर्दू में कहा जाता है मफऊल, और मफऊल किसे कहते हैं? जिस पर काम का असर पड़ता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स अ मील. अब ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है. मील व्हाट इट इज? वर्ब. और मील व्हाट इट इज? ऑब्जेक्ट. अब देखते हैं इन सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हाट आर द रूल्स टू मेक सेंटेंसेस और टू राइट सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. रूल नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट सब्जेक्ट. आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट वर्ब, एंड विच फॉर्म ऑफ वर्ब? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर आपका काम के करने वाला सिंगुलर यानी कि वाहिद है, एक है, ही है, शी है, इट है, या किसी भी इंसान, एक इंसान का नाम है जैसे अहमद, तो आप क्या करेंगे? वर्ब के एंड में लिखेंगे एस और ई एस, और एंड में हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को. दिस इज रूल नंबर 1. रूल नंबर 2, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बाद में ऑब्जेक्ट. यहाँ पर वर्ब के साथ एस और ई एस अटैच नहीं किया जाएगा. वाई? बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लूरल, जैसे कि दे, वी और आई. आई के साथ भी जब हम वर्ब्स यूज करेंगे उसके साथ भी हम एस या ई एस नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट इज टू नेम्स आर टुगेदर. अगर अहमद एंड अली दो नाम एक साथ हैं तो भी आप वर्ब के साथ एस या ई एस अटैच नहीं करेंगे. लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स. सिंगुलर सब्जेक्ट, देयर इज रिटन one child is shown here, and there is written child plays. Why? Because why? Child is subject here, and what is play here? Plays is verb here, and we have added s with this verb. Why? Because the subject is singular. Next picture, there is picture of two children playing here. There is written, this is so plural subject, children play. We haven't written s with play here. Why? Because the subject is plural. Okay dear students, so what is the structure of sentence? Subject, first form of verb, and then you will write s or es, and in last you will put object if the subject is singular. Then if the subject is plural, you will write subject plus verb, first form of verb, and then you will put in last object. Now students, how to write affirmative यानी कि बयानी जुमले, how to write negative यानी कि मनफी जुमले या नफी वाले जुमले, and last is how to write interrogative यानी कि सवालिया जुमले. उनका स्ट्रक्चर क्या होगा of present simple tense? Let's learn here. As we know this, the simple sentence of
simple present tense is subject plus verb plus object. This is the affirmative sentence. If the subject is plural, then you will not add s or es with verb, but if the subject is singular, you will add s or es with the verb. And verbs, which form is used in present simple tense? First form of verb. Now students, second number rule is for the negative sentences. If you want to write a negative sentence, how to change an affirmative sentence, positive sentence into negative? What you will do? You will first of all write subject, and with subject you will write do not if the subject is plural. अगर subject जमा है तो आप उस सेंटेंस में यूज करेंगे डू नॉट, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, शी है, इट है, या फिर किसी भी एक इंसान या एक चीज़ का नाम है, तो आपके साथ उसके साथ यूज करेंगे डज नॉट. फिर उसके साथ लिखेंगे वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड देन इन लास्ट ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप डज नॉट यूज करेंगे तो सब्जेक्ट जो वर्ब के साथ एस और ई एस हमने लगा चुके हैं उसको भी आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, एस और ई एस को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि एस और ई एस की जगह पर आप इस्तेमाल कर देंगे डज नॉट. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अगर आपने किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवाली जुमले में चेंज करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, डू और डज को पहले लिखना है. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज. फिर आपने सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट, और एंड में आपने देना है क्वेश्चन मार्क. ये हैं सिंपल रूल्स फॉर राइटिंग sentences of present simple tense. Now these are the rules if the subjects are singular. तो आपने verb के साथ s और es, किस verb के साथ s लगाएंगे, किस verb के साथ es लगाया जाएगा और किस verb के साथ ies लिखा जाएगा. Let's see, अगर कोई भी जनरल आपके पास verb है जैसे work, eat, प्ले, स्विम, राइट, तो आपको क्या करना है, जस्ट इन वर्ब्स के पीछे एस लिख देना है. लाइक ही वर्क्स, शी ईट्स, ही प्लेज, अहमद स्विम्स, अली राइट्स. बिकॉज ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स मैंने आप नाउ आई हैव टोल्ड यू दीज ऑल आर सिंगुलर. लेकिन अगर कोई भी ऐसा वर्ब है जिसके एंड में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट वाई है एंड में और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, ऐसे वर्ब्स जो वाई पर ख़त्म हो रहे हैं, जिनका आखिरी लेटर वाई है और वाई से पहले वाला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो आपको क्या करना है, आपको वाई को ड्रॉप करना है और वाई की जगह ऐड कर देना है IES. जैसे कि स्टडी, स्टडी आप देख रहे हैं STUDY, ख़त्म हो रहा है ये वर्ब वाई पे और वाई से पहले डी है और डी एक कॉन्सोनेंट है. अब आपने क्या करना है, वाई को ड्रॉप करना है, ख़त्म करना है और इसकी जगह लिखना है IES. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ शी स्टडीज इन क्लास 5, ही स्टडीज इन क्लास 6, तो आपने ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब को आपने एंड में वर्ब के स्टडी अगर वर्ब है तो उसके एंड में यूज करेंगे IES. अगर क्राई है, फॉर एग्जाम्पल ही अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है और लिखा है ही क्राइज, तो आप कैसे गेस करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, बाय लुकिंग एट द फॉर्म ऑफ वर्ब. विच फॉर्म ऑफ वर्ब इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्राई, और क्राई के आगे क्या लगा दिया है IES. हमने क्यों लगाया है IES, बिकॉज इट इज सिंगुलर, ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट. उसके बाद सेकेंड है, थर्ड वर्ड है ट्राई, ट्राइज में चेंज हो जाएगा. स्पाई यानी कि जासूस, स्पाइज में चेंज हो जाएगा. उसके बाद फ्लाई, फ्लाइज में. ठीक है, ये यहाँ पर प्लूरल नहीं कर रहे हम इनको, वी आर जस्ट एडिंग IES. वाई, बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर. नाउ स्टूडेंट्स, अगर ऐसे वर्ब्स आपके पास हैं जो उनके एंड वाले लेटर्स हैं O या SH या TCH या X या SS, तो इन सभी वर्ब्स के एंड में आप अटैच करेंगे
एस, कोई भी तब्दीली किए बगैर जस्ट आप एंड में ई एस का एडिशन करेंगे, जैसे गो गोज, वॉश वॉशेस, वॉच वॉचेस, मिक्स मिक्सेस. So I think it is very clear now how to add s, ies or es. Where to add s, where to add ies, and where to add only es. You will learn more as you will practice more. Now students, there are some sentences given here, construction of sentences. Now look at the first box. There is written I play football. You play basketball. We play piano. They play the drums. ये ऊपर वाले जो बॉक्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए प्ले इस्तेमाल किया गया है. लेकिन नीचे वाले बॉक्स में अगर आप देखें, देयर इज रिटन ही, शी, इट. ये तीनों क्या हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं. तो इनके साथ लिखा हम क्या यूज करेंगे? ही प्लेज फुटबॉल. She plays basketball. It plays the piano. Are you getting? Now let's change these sentences into negative sentence. Look at here, negative sentences. I do not play football. You do not play basketball. They do not play the piano. See, do not is used with I, you and all plural subjects. But with singular subjects, what we use? Does not or doesn't. Both are same. He does not play football. Now students, I told you when you will change sentence into negative, तो आप क्या करेंगे? Verb के साथ लगी हुई s को ख़त्म करेंगे negative sentence में. She does not play the drums. It does not play football. So ये सारे singular subjects के साथ we are using which thing? Does not. Now next, there is written interrogative sentences. Look students, do is used with I, you, we, they and plural subjects. Do you play football? Do we play the drums? Do they play volleyball? Does she play football? Does he play the piano? Does it play the drums? Are you getting? So there are two helping verbs which are used in present simple tense. First one is do and the second one is does. Now students, there are more sentences for you. Positive or affirmative sentences, negative sentences and question or interrogative sentences. Let's look at the sentence number 2. I like fruits. Why like is there? Why not likes is there? Because I is there. With I, you and plural subjects we use, we do not add s with verb. I like fruits. Let's change into negative. I don't or do not like fruits. Do I like fruits? Let's see sentence number 4. My son makes his bed. My son, it is singular subject. That is why with make we have written s, which is makes. Let's change this into negative. Does not we will use now and s we will remove from makes. My son does not make his bed. Let's change into interrogative. Does my son make his bed? I think you are getting now. You have to see this very carefully and you will read these all sentences, and if you have any confusion you will ask from me. Now students, this exercise is complete about present simple tense, which is present on page number 5. Now what you have to do, you have to find the verbs in 4 emails that we have learnt, and you will circle those verbs which are present in first form and which are verbs of present simple tense. Now students, let's overall sum up our present simple tense. Present simple tense is a tense which is used to describe conditions that have existed for some time. In present simple tense, we use first form of verb. And if the subject is singular, we put s or es or ies with the verb. But if the verb is plural, we do not put any s, es or ies with verb.
and with the singular subjects we use does, and with the plural subjects we use does not or do not or do. Now students, what you have to do, you have to write any 5 sentences of present simple tense in your rough copy, and you will change those simple present tense sentences into negative and interrogative. Then it will be a great practice for you. Now let's see the second exercise of grammar, which is compound adjectives. What is compound adjective? A compound adjective is an adjective made up of 2 or more words linked by hyphen or hyphens. एक कंपाउंड एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो कि बना होता है 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का, जिनको आपस में जोड़ा जाता है हाइफिन्स की मदद से. अब हाइफिन किसे कहते हैं? ये छोटी सी लाइन जो आपको नजर आ रही है, दिस इज हाइफिन. अ कंपाउंड एडजेक्टिव इज यूज्ड एज अ मॉडिफायर बिफोर अ नाउन. इन अदर वर्ड्स इट एड्स इंफॉर्मेशन टू द नाउन. अब नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंपाउंड एडजेक्टिव, जिसको कहा जाता है मुरक्किब सिफत. मुरक्किब किसे कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स को हम पढ़ चुके हैं पहले. कंपाउंड वर्ड्स किन्हें कहते हैं? जब 2 वर्ड मिलकर हाइफन के साथ अटैच्ड होते हैं और 2 लफ्ज मिलकर एक मीनिंग को जाहिर करें, उसको कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स. यानी कि एक से ज़्यादा वर्ड्स जब आपस में जुड़ते हैं वो कंपाउंड वर्ड्स बन जाते हैं या मुरक्किब अल्फाज बन जाते हैं. इसी तरह से कंपाउंड एडजेक्टिव्स कौन से हैं? जो नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दें और वो एक या 2 से ज़्यादा वर्ड्स हों जो आपस में जुड़े हुए हों. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. अ नेवर टू बी फॉरगेटन हॉलीडे, अ 1 in a million चांस, द 4-year-old डिस्प्यूट. अब यहाँ पर हॉलीडे क्या है? नाउन है. डिस्प्यूट क्या है? नाउन है. द 4-year-old क्या है? एडजेक्टिव है. कौन सा एडजेक्टिव? कंपाउंड एडजेक्टिव. अब आपकी बुक में ये आपको टास्क दिया गया है कि आपको क्या करना है. आपकी जो ईमेल्स आपने पढ़ी हैं पीछे 4, उनमें से आपने कोई भी 6 कंपाउंड एडजेक्टिव्स ढूंढने हैं और उनको लिखना है. अब स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन फॉर यू, एज यू कैन सी इन पर्पल बॉक्स देयर इज रिटन नंबर 1. दिस इज कंपाउंड एडजेक्टिव. वर्ल्ड फेमस आर्ट गैलरीज. नंबर 2, डर्टी ब्राउन स्लश. नंबर 3, 15-year-old गर्ल. Number 4, large horned animal. Number 5, red double-decker buses. Number 6, Afro-Cuban music. अब स्टूडेंट्स, ये सारे कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं. यू विल मेंशन दीज ऑन योर टेक्स्ट बुक. ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 6. ऑन पेज नंबर 6 देयर इज अगेन दे हैव रिटन फॉर यू सम सेंटेंसेस. उन्होंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और आपको कहा है कि इन सेंटेंसेस को आप तब्दील करें इनटू कंपाउंड एडजेक्टिव्स. आपने अब ऐसे वर्ड लिखते हैं जो 3 या 4 वर्ड्स हों या फिर 2 वर्ड्स हों और वो आपकी पूरी लाइन को डिस्क्राइब करें. ओके, आपने इस पूरे सेंटेंस को शॉर्ट करके कंपाउंड एडजेक्टिव में चेंज करना है. इन ब्राउन कलर बॉक्स यू हैव टू सी इन दिस पीच कलर बॉक्स. ओके, नंबर 1, अ मॉन्स्टर विथ मोर देन 1 हेड. एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके एक से ज़्यादा सर हो, उसको आप कंपाउंड एडजेक्टिव में चेंज करके इस मॉन्स्टर के बारे में बताएं. मॉन्स्टर इज नाउन. अब आपने क्या करना है? लिखना है मल्टी हेडेड मॉन्स्टर. लीव्स विच आर पार्टली रेड एंड पार्टली गोल्ड. रेडिश गोल्ड लीव्स. अ पोएट हु इज पार्टली इंग्लिश एंड पार्टली डच. डच इंग्लिश पोएट. अ क्राइम विच विल नेवर बी फॉरगिवन. एक ऐसा जुर्म जिसको कभी भी माफ ना किया जा सके. अनफॉरगिवेबल क्राइम. एन एनिमल विथ बिग फीट. बिग फुटेड एनिमल. एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर विथ पर्पल आईज. पर्पल आईड एलियन. This also you will do on your textbook. Now students, learn happily. This is very important that whatever you learn, you should learn it with heart and soul and with happiness. If you will learn anything with sad mood or you will feel burden, you can't learn anything. If you will learn and with great happiness you will learn, inshallah you will be successful. As Colin Powell has said, there are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work and learning from failure. May Allah bless you all. May Allah increase your knowledge. Stay blessed. Allah Hafiz.